Hello guys, welcome to the channel of Clad Prep. My name is Tarun Swami and here we are with the Hindi editorial and you can see that the wobbly walk, right? You must have read that article. A wobble is like jab you cannot straight up nahi jab chal pata, it's wobbly, like fumbling, right? So it's a wobbly walk. And why it is said that India did well to assert its tie with Russia, but the optics were bad. अब इंडिया ने सही करा अपने जो टाइज है उनको और मजबूत करना विद रशिया, बट द ऑप्टिक्स जो देख रहे हैं जो लोगों का नजरिया है, इट वाज नॉट गुड, लाइक दे आर नॉट फेवरिंग दिस थिंग. सो इट स्टार्ट्स लाइक द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's Moscow visit was billed as his first stand-alone visit during this tenure. So this is the third tenure of Narendra Modi, and this is, as what you call seen by the people as it's a stand-alone visit, with officials laying stress on purely bilateral framework. लेकिन जो officials है वो क्या कह रहे हैं, मतलब जो ऑफिशियल्स हैं वो जोर दे रहे हैं कि इट इज प्योरली बायलैटरल फ्रेमवर्क. हाउएवर, हालांकि जो द विजिट है हैड स्ट्रॉन्ग बायलैटरल कंपोनेंट्स, इट्स इम्पैक्ट हैज बीन फेल्ट ग्लोबली. लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है वह आपको पूरे सब जगह, अमेरिका ने भी इसको कंडेम करा है विद अनप्रेसिडेंटेड क्रिटिसिज्म फ्रॉम कीव. कीव वाज नॉट हैप्पी ऑफ कोर्स. कीव तो कैसे होगा, बिकॉज रशिया से अपन मिल रहे हैं एंड कीव वांटेड दैट वी मस्ट नॉट सपोर्ट रशिया, and Washington on its timing and optics, right? On the bilateral front, the visit, his first to Russia since 2019. So after 2019, that is his first visit and the first annual summit in 3 years, right? और 3 सालों में ये पहला summit भी है. Resulted in a number of outcomes, जिसके अंदर जो इसके परिणाम आए हैं, मतलब बहुत सारे different outcomes हैं. There was a reaffirmation of India-Russia ties as well as Mr. Modi's obvious personal rapport with Russian president. Rapport is a very good word. That means जो उनका खुद का personal जो उनके साथ relation है friendly with Russian president Vladimir Putin, right? So ये एक वापस reaffirm करा है मोदी जी ने that he has a good relation, affinity, right? They have good amity, both of these. And Mr. Modi also received Russia's highest civilian award, that is St. Andrews. He praised Mr. Putin's efforts to strengthen bilateral ties, right? और उन्होंने प्रशंसा भी करी है मिस्टर पुतिन के जो एफर्ट थे कि उन्होंने स्ट्रेंथन करने के लिए जो bilateral ties को, that had appeared to be flagging, और ये ऐसा प्रतीत भी हो रहा है that it is to be flagged. Given the war in Ukraine, the growing Russia-China ties, right? और ये किसको आगे बढ़ावा दे रहा है? That given the war in Ukraine and growing Russia-China ties है, उस समय भी it is the effort to strengthen the bilateral ties. In formal talks, the leaders focused on bettering the economic and trade relationship. और इनकी जो formal talks में इन्होंने किसके ऊपर फोकस करा है? That economic and trade relationship, which has often been a neglected part of the largely government to government engagements. और ये एक जो हमेशा neglect किया गया है, and it is like government to government engagement भी रहा है, and announced a bilateral trade target. और इनका एक announcement भी रहा है जिसके अंदर जो इनका ट्रेड टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा? इट वुड बी 100 बिलियन बाय 2030. इट्स अ ग्रेट नंबर which should be easily met given India's massive increase in oil imports from Russia, especially discounted due to Western sanctions, right? और ये तो आपको पता ही है that all the Westerns, they have put the sanctions of oil का import उससे रशिया से नहीं करने का, right? इसके अंदर we are taking the advantage, so that will play a crucial role. So Mr. Modi also won an assurance from Mr. Putin that Indian recruits enlisted, right? That is a good one, right? That उन्होंने ये भी अश्योर करा है कि जो उनके रशिया आर्मी के अंदर जो enlisted है रशियन आर्मी के अंदर, they will be allowed to return to India. I was not aware even that they were not allowed to return India, जो रशियन आर्मी हुआ करते थे, unlike in the past, जैसा कि जो पास्ट में हुआ करता था, अब ऐसा नहीं होगा. The visit lacked any announcements of military purchase. हाँ, अभी इसके अंदर क्या, जैसा कि जो पास्ट में होता था हमेशा कि दैट हम कुछ मिलिट्री परचेज करते थे, बट अब वैसा नहीं है. ऑफ मिलिट्री परचेजेस दैट हैव बीन द मेन स्टे ऑफ टाई, जो हमेशा रहा है.
ड्यू पार्शली टू रशियन डिलेज इन सप्लाईज ऑफ डील्स। और ये किस कारण से? बिकॉज पार्शली टू द, जो ये डिले करते थे सप्लाईज ऑफ डील्स ऑलरेडी अनाउंस आफ्टर द इन्वेजन ऑफ, ये क्यों हो रही है? बिकॉज द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड टू ऑल्सो अवॉइड इंटरनेशनल सेंसर, राइट, कि जो इंटरनेशनल सेंसर उसको भी अवॉइड करने के लिए मिस्टर मोदी स्टेटमेंट दैट देयर वाज नो सोल्यूशन ऑन द बैटलफील्ड, कि बैटलफील्ड पर कोई भी सोल्यूशन नहीं आता है टू द कॉन्फ्लिक्ट, एज वेल एज हिज डिसीजन टू ट्रेवल फर्दर टू वियना वर सीन एज अटेम्प्ट्स टू बैलेंस द ट्रिप, राइट? देन नाउ ही विल बी गोइंग टू वियना एंड दिस इज अगेन टू बैलेंस द ट्रिप एज हिज फर्स्ट सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगिन। और ये पहला ही एक प्रयास है जब से कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है। In an increasingly polarized world, this was easier said than done, right? So जो ये increase अभी polarization हो रहा है, that means good बन रहे हैं दो, right? So this was easier, ये बहुत easy था कहना करने की बजाय, especially as Mr. Modi's visit happened even as Ukraine was hit by a devastating missile attack, जो कि हॉस्पिटल में हुआ था, उसके जस्ट बाद ये गए हैं, right? And देयर वर ऑल्सो नाटो, वहां पर नाटो भी है, वेस्टर्न अलायंस लीडर्स भी हैं, एंड यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की कन्वर्जिंग इन वॉशिंगटन फॉर अ समिट दैट वाज एम्ड, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक समिट भी कर पाए, ऑल्दो अनसक्सेसफुली एट शोइंग रशियाज आइसोलेशन, की वह उसको दिखाना चाहते थे, राइट, जो कि अभी हो नहीं पाया, लेकिन वो चाहते थे कि जो रशिया को एक की अकेला पटक दिया वो दिखाएं। It is another matter that the stance reeks of hypocrisy, right? कि जो stance है उसमें कुछ फ्लेवर है, गंध है, राइट? रीक्स इज दी वेपर्स, राइट? सो यहां पर जो कुछ टिंच आ रहा है ऑफ हिपोक्रेसी एज वेल एज, जैसा कि जो नाटो कंट्रीज हैव फेल्ड टू शो सिमिलर कंसर्न ओवर द किलिंग ऑफ इनोसेंट्स इन गाजा, राइट? कि जो नाटो की जो अंदर अलायंसेज है, जो कंट्रीज हैं, उन्होंने कोई भी कंसर्न नहीं दिखाया जो गाजा के अंदर जो इनोसेंट्स मारे हैं ड्यू टू इजराइल्स रेलेंटलेस बॉम्बार्डमेंट। दैट मींस नाटो कुछ नहीं दिखा रहा है, नाटो ने कभी जो कंट्रीज हैं उसके अंदर दे आर नॉट कमिंग forward, they are not showing any concern about the गाजा के अंदर जो हुए, so that means it's a hypocrisy जो अभी ये कर रहे थे। Okay, the US State Department and Ukraine have been openly critical of Mr. Modi's visit, right? And they have criticized it openly. And New Delhi's task will be to limit the damage in ties, right? और हमारा क्या बनता है that Delhi means यहाँ पर it is like the metonymy that or we can say it is moreover दैट आपने दिल्ली से किसको रिप्रेजेंट कर दिया? आपने दिल्ली से रिप्रेजेंट कर दिया इंडिया को, और मॉस्को से रिप्रेजेंट, वॉशिंगटन से किसको आप कर रहे हो? दैट इज यूएस, राइट? सो अब यहाँ पे क्या है कि जो न्यू दिल्ली का टास्क है, इट विल बी टू लिमिट द डैमेज इन टाइज विद द यूएस एंड यूरोप, कि हमारे को अब क्या करना है, इसको डैमेज को बिल्कुल मिनिमम करना है। एंड इन द लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म के अंदर इंडिया विल हैव टू असर्ट इट्स इंटरेस्ट एंड कन्विंस द वेस्ट, एंड इंडिया को जोर दे रहा है उसका जो फायदा है और उसको कन्विंस करना है that where the West that it is futile to force India, that it is not now that you can, it will be all in vain if you force us that whom with we stand or whom we should support, right? That's what they are saying, that to force India to choose or to push a country known for its independent stance to become a camp follower in this conflict, right? कि वो इसमें camp follower नहीं बनेगा India. It is a clear message that India is giving. So what is the what you can the main idea of this passage? That the main idea is that सबसे जब भी हम बात करते हैं guys, when we talk about the main idea, always remember that we always have a hero. अब इसका टॉपिक क्या था? India and Russia's meeting, bilateral meeting, right? Or you can say Modi and Putin's meeting. This is the hero. अब इसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि इस मीटिंग का ओवरऑल क्या इम्पैक्ट रहा, राइट? इसके ऊपर इसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करा, इसको दुनिया कैसे देख रही है, राइट? सो दैट इज द मेन आइडिया। बट अब इसका जो मेन आइडिया है वो कैसे बताया गया है, इसको पूरा एनालाइज करते हुए, राइट? सो इट इज एनालिटिकल, कि पहले क्या हुआ करता था, अब क्या नहीं है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इंडिया को अब क्या करना चाहिए, राइट? सो इट इज अ वेरी एनालिटिकल टोन दैट द ऑथर, सो जो आइडिया है वो रिप्रेजेंट कैसे करा है, राइट? जो आइडिया था दैट अमिड ऑफ दिस वॉर, राइट, रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है उसके बीच में, दैट हाउ द
the world or what is the global impact of this meeting, right? So ये तो मेन आइडिया था, बट अब इसको कैसे बताया है, पूरा एनालाइज करते हुए बताया है। तो जब हम कहते हैं कि जो सबसे पहले ऑलवेज गो फॉर द हीरो, एवरी मूवी, एवरी टॉपिक, एवरी आर्टिकल हैज अ हीरो, दैट मींस द सेंटर। अब उस सेंटर के बारे में क्या बात चल रही है, दैट वुड बी योर सेंटर थीम, योर मेन आइडिया, राइट? एंड वो क्या और वो कैसे बताया गया है, दैट वुड बी योर टोन। Fine. So I hope you people must have got the clear insight of this passage, right? And we'll meet in the next editorial. Till then, keep on reading, study hard, party hard, right? Okay.